کے آغاز میں سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں مہنگائی کا۔ ہائے رے مہنگائی، ہر طرف مچ گئی دہائی۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.42% اضافہ ہو گیا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 16.56% ہو گئی ہے۔ کم ترین آمدن والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 17.40% ہو گئی۔ ایک ہفتے میں 33 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ زندہ مرغی 28.26 روپے کلو مہنگی ہوئی ہے۔ ادارہ شماریات کا ایسا بتانا ہے دال مسور 14.88 روپے، دال چنا 6.54 روپے کلو مہنگی ہو گئی۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 54.62 روپے مہنگا ہوا۔ مہنگائی سے بلبلائی عوام کی حکومت سے رحم کی اپیل۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں 1.42% اضافہ ہوا ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 16.56% ہو گئی۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے روپے کو کیا خوب ہلکان۔ 7 دنوں میں ڈالر 7 روپے 61 پیسے مہنگا ہوا۔ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی روپے کو لے ڈوبی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 3.95% کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے روپے کو کیا خوب ہلکان۔ 7 دنوں میں ڈالر 7 روپے 61 پیسے مہنگا ہو گیا۔ درآمدی بل اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی روپے کو لے ڈوبی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 3.95% کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کا پاکستانی روپے کو دھوبی پٹکا۔ 7 دنوں میں ڈالر 7 روپے 61 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی روپے کو لے ڈوبی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 3.95% کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے روپے کو کیا خوب ہلکان۔ ڈالر نے روپے کی قدر کو کیا آؤٹ آف آرڈر۔ صنعتی شعبہ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے شدید متاثر۔ نئی مشینری منگوانا اور صنعتیں لگانا ناممکن ہو گیا۔ را مٹیریل کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھی صنعتوں کو مزید مہنگا کر دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عاصم صدیق سے۔ عاصم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ روپے کے مقابلے میں ڈالر تگڑا ہوتا جا رہا ہے، جس کا اثر انڈسٹری اور عام شہریوں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن عثمان محمود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عثمان صاحب، ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی، اس سے انڈسٹری بھی کتنی متاثر ہو رہی ہے، عام شہری کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بالکل جیسے ڈالر جو ہے وہ ڈبل سینچری اپنی مکمل کر چکا ہے اور اس سے اوپر جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، اور جو آپ کی امپورٹ کے اوپر ہے 203 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اسٹرن ڈالر۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے لیے اور عام تاجر کے لیے۔ تاجر اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہے، بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے اس چیز کے اوپر، کیونکہ ان کے ویلیو جو پیسے کی ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو چیز بھی جو یوٹیلائز ہوتی ہے انڈسٹری میں یا ادروائز، جو آپ امپورٹ ڈیوٹیز انکریز کر رہے ہیں مشینریز پہ اور چیزوں پہ، وہ مت کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کی انڈسٹری لگنا بند ہو جائے گی اور آپ کا جو تاجر ہے وہ پریشان ہو جائے گا، اور آپ کے ملک میں انڈسٹری لگے گی تو آپ کو روزگار لوگوں کو مل سکے گا اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ بالکل، مطلب سراہا جا گیا ہے ان کی طرف سے، جو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں جس پہ امپورٹ پر کچھ آئٹمس پر پابندی عائد کی گئی ہے، وہ اس کے علاوہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان میں مشینری لگانے پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان میں مقامی سطح پر چیزیں بن سکیں، اور اس طرح کا ڈالر۔ عاصم صدیق، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تاریخی مزار حضرت بی بی پاک مائی پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ قدیم مزار کے خستہ حال برآمدے کی چھتیں، ستون اور دیواریں نئی تعمیر کر دی گئی ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ جی سہیرہ۔ ملتان شہر کے تاریخی مزارات میں سے ایک حضرت بی بی پاک مائی المعروف بی بی راستی کا مزار بھی ہے، جو کہ بستی دائرہ میں واقع ہے، اور تقریباً 1 سال قبل یہاں پر رینوویشن کے کام کا آغاز ہوا تھا۔ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ بی بی پاک مائی کے مزار کا برآمدہ ہے، جس کی چھتیں خستہ حال تھیں اور تقریباً یہ گرنے کی پوزیشن میں تھا۔ اس کی جب بحالی کا کام کیا گیا ہے اور دیواروں کی جو صفائی کی گئی ہے، جب اس کے اوپر جو وائٹ واش ہوئی تھی، جو چونے کی تہ تھی، اس کو جب ہٹایا گیا، صاف کیا گیا ہے، تو نیچے سے حیرت انگیز طور پر یہاں پر قدیم نقاشی کی گئی جو ٹائلز ہیں وہ نکل کر سامنے آ گئی ہیں۔ کسی بھی تاریخی مزار کی رینوویشن کا مین مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مزار کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے، جیسا کہ جتنے سال پہلے اس کو جس طرح سے جس طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا اس کی وہی حالت برقرار رکھی جائے۔ اب یہ جو ٹائلز یہاں پر موجود ہیں
ان کی صاف ستھرائی کی جائے گی, ان کی مرمت کی جائے گی, اور جہاں پر ٹائلز موجود نہیں ہیں وہاں پر نقاشی کی ٹائلز جو ہیں وہ لگائی جائیں گی. یہاں پر وضو خانہ جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے, اور یہ سارا فرش بھی جو ہے وہ نیا تعمیر کیا جائے گا. تقریباً 1 سال قبل یہاں پر کام شروع ہوا تھا, لیکن پھر کرونا کی وجہ سے تعمیراتی کام تاخیر کا شکار ہو گیا تھا. اب اس سال جو ہے وہ تعمیراتی کام مکمل کر لیا جائے گا, اور اس حوالے سے فنڈز جو ہیں وہ ورلڈ سٹی مکمل کر لیا گیا ہے. سہیرا طارق آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی, ڈیری خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر سستے آٹے کی فراہمی شروع ہو گئی ہے. مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 روپے میں ملنے لگا ہے. کمشنر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک کا ڈاٹ پول پر ہر موجود آٹا پوائنٹ کے دوران آٹے کے اسٹال پر سٹاک کو چیک کیا گیا اور معلومات بھی لی گئی ہیں. مزید جان لیتی ہیں عاشر اشفاق سے. جی عاشر, بتائیے. پاکستان کی طرح پرانے پاکستان میں بھی مہنگائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اگر بات کی جائے اشیاء خوردنوش کے حوالے سے تو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اگر بات کی جائے گھی کی قیمت کے حوالے سے تو بی گریڈ گھی کی قیمت میں جو ہے وہ 30 روپے کلو تک کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے, اور اے گریڈ کا جو گھی ہے اس میں 50 روپے کلو تک کا اضافہ ہو چکا ہے, جو کہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت خریدار بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں, قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے, کیا پریشانی آپ کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل, خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب آئے ہیں ہم نے قیمتیں دیکھی ہیں. چاول جو ہے وہ 40 سے 50 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. دال مسور ہے وہ 15 سے 20 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ چنا ہے, چنا بھی 20-25 روپے اضافہ ہو گیا ہے. تو ہم لوگ یہ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی دیکھ کے حیران و پریشان ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم کس سے جا کے اپنی التجا کریں, کس سے اپنے جا کے مطالبہ رکھیں. کیونکہ اب ہمارا جو حکومتی معاملات چل رہے ہیں, جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں, اس میں زیادہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے. ہر کمپنی نے اپنا ریٹ اپنی مرضی سے بڑھا کے رکھا ہوا ہے. تو ہمارا یہ اعلیٰ حکام سے اور حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ ریٹ کنٹرول کیے جائیں, تاکہ جو غریب مزدور ہے, جو کم آمدنی والے افراد ہیں, وہ مستفید ہو سکیں. جی ریٹ جو ہیں وہ کم کیے جائیں. دکاندار سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہے, تو کیسے کاروبار آپ کا چل رہا ہے, کیا پریشانی آپ کو, آپ کیا کہیں گے؟ بہت مشکل ہو رہی ہے, اس لیے کہ اوور نائٹ چیزوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. ایک چیز آج 380 روپے کی بیچ کے جاتے ہیں, کل کو وہی جو ہے منڈی ریٹ میں 400 روپے کی مل رہی ہے. تو بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات کا شکار ہیں, خاص کر جن لوگوں کو ادھار دیا ہوا ہے. اب وہ کھاتے ریکور نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کی آمدنی کم ہے اور ان کے جو ہے نا ایکسپینسو بڑھ رہے ہیں, اس لیے پرابلم تو سب کو ہو رہی ہے. جی جیسا کہ آپ نے ان سے جانا, جیسے ہی شہری پریشان ہے تو دکاندار اپنی جگہ پہ پریشان ہے. قیمتیں جو ہیں وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں, جس سے جو ہے شہری خرید نہیں پا رہے. شہریوں کی طرف سے اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے. رانا پرویز آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈیری خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر سستے آٹے کی فراہمی شروع ہو گئی ہے. مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 روپے میں ملنے لگا ہے. کمشنر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک کا ڈاٹ پل پر موجود آٹا پوائنٹ کا دورہ, آٹے کے اسٹال پر سٹاک چیک کیا اور معلومات لیں. مزید جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے. جی عاشر, بتائیے گا. بالکل, ڈیرہ غازی خان میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سستے آٹے کی جو فراہمی ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. باقاعدہ طور کے اوپر کمشنر ڈی جی خان اور ڈپٹی کمشنر نے بھی مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا ہے اور جائزہ بھی لیا ہے. بات کر لیتے ہیں, ڈی ایف سی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کتنے پوائنٹس ڈیرہ غازی خان میں لگائے گئے ہیں سستے آٹے کے, اور کتنی قیمت پر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کے مطابق اور اسپیشلی سی ایم صاحب پنجاب کی ہدایت پر ڈی جی خان ڈسٹرکٹ میں آج سے آٹے کی سپلائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. 9810 کے جی کا تھیلا جو ہے وہ آج پوری مارکیٹ میں سپلائی کیا گیا ہے. تو اس کا جو پڑتال کا میکانزم ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم ٹیمیں بنا رہے ہیں کہ وہ ٹیمیں جا کے شاپ کیپر کو چیک کریں گی, اور شاپ کیپر جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا کہ اپنی رجسٹر رکھے گا, اس کے اوپر CNI صحیح اور موبائل نمبر جو ہے کسٹمر کا لکھے گا, تاکہ اس میں کوئی پلفریج وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فلور مل ایسوسیشن جو ہے اس کا پورا تعاون ہے, اور کل ایمرجنسی بیس پہ ہم نے کہا تو آج انہوں نے پوری مارکیٹ میں سپلائی دی ہے. تو یہ آٹا ہمارا 10 kg کا پوری مارکیٹ میں ہوگا, اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پہ آٹا یہ میسر نہ ہو. بالکل, حکومت کی ہدایت پر سستے آٹے کی جو فراہمی ہے وہ مارکیٹوں میں شروع کر دی گئی ہے, اور مارکیٹوں میں باقاعدہ طور کے اوپر 10 کلو آٹے کا تھیلا آج سے 400. عاشر اشفاق آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آٹا جو ہے وہ سستا ملنا شروع ہو گیا ہے.
नाहमवार जमीनों का काबिल काश्त बनाने का मिशन खटाई में पड़ गया है। काश्तकारों को बिल्डोजर देने के लिए डीजल ही मौजूद नहीं है। 3 माह से करोड़ों मालियत की मशीनरी को एक लीटर भी डीजल नहीं मिल सका। असिस्टेंट एग्रीकल्चर मोहम्मद राहील आला हुकाम की जानिब से सुनवाई न होने पर शिकवा कुना है। नाहमवार जमीनों को काबिल काश्त बनाने का यह मिशन खटाई में पड़ गया। काश्तकारों को बुलडोजर देने के लिए डीजल ही मौजूद नहीं है। 3 माह से करोड़ों मालियत की मशीनरी को एक लीटर भी डीजल नहीं मिल सका। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, साबका हुकूमत की तरफ से काश्तकारों को सहूलियात फराम करने के लिए सब्सिडी पर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें नाहमवार ज़मीन को हमवार करने के लिए सब्सिडी पर बिल्डोज़र फराम किया जाना था। 3 माह गुजर गए, महकमा ज़राअत को 1 लीटर भी पेट्रोल फराम नहीं किया गया, जिसकी वजह से काश्तकार और ज़मींदार परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर राहील साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, लोग परेशान हैं, डीजल नहीं है, क्या बनेगा, कब आएगा डीजल सर? जी अस्सलाम वालेकुम। डीज़ल की वाकई शॉर्टेज है जी, हमारे पास डीज़ल इस वक्त नहीं है। फार्मर्स आ रहे हैं, जो सब्सिडी की बुकिंग है उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताया भी है और आपके चैनल की तवज्जो से भी हम ये हायर अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली जो है हमें डीजल दिया जाए और मोबाइल भी। हमारे जो है ना अब बिल्डोज़र भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है, उनकी हम सर्विस कर सकें। 1000 घंटे के बाद सर्विस करनी होती है, तो वो अब 1500 चल चुके हैं। तो हमारे पास ना मोबाइल है ना इस वक्त डीजल है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही है ज़मींदारों को। तो हम आपके चैनल की तवज्जो से ये गुजारिशात पेश करते हैं कि जी डीजल और मोबाइल जो है फराम किया जाए। तो परवेज साहब आप बताइएगा, कितने काश्तकार हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऑफिस आते हैं और क्या बनेगा इनका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास सब्सिडी के अंदर तकरीबन 3000 से अबव मतलब बुकिंग हो चुकी है। अब हमने वो बुकिंग भी मतलब रोक दी है और उसके अलावा हमारे पास क्योंकि पिछले 3-4 माह से ना डीजल नहीं आया, तो हमारी अपनी व्हीकल्स भी बड़ी मुश्किल में हैं। मतलब हम लोग डिपार्टमेंट भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है इस हवाले से। और इसके अलावा जो हमारे पास सब्सिडी का जो डीज़ल है, इसका ज़्यादा इशू बन रहा है। तो आपने मतलब आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये अपनी हायर अथॉरिटी को ज़रूर कहूँगा कि वो हमारे मतलब हम पे एहसान करें, ताकि फार्मर्स रोज़ हमारे मतलब आते हैं यहाँ पे। हम भी उनको ये कह के थक चुके हैं कि अब जो है ना डीजल आए तो हम आपका काम मतलब मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं जो सब्सिडी के लिए अपने पैसे भी जमा करवा सकते हैं। लमसम अंदाजा किया जाए तो 3 से 4 पैसे भी जमा करवा चुके हैं। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर है। जनूबी पंजाब के टेम्परेचर में कमी वाक़या हुई है। टेम्परेचर 48 डिग्री से कम होकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा है। बारिश न होने के बावजूद गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। मजीद जान लेते हैं माजिद क्लासरा से। जी माजिद। जी बिल्कुल, शहर औलिया में हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। आज जो है वो दर्जा हरारत है उसमें जो है वो कमी वाक़ई हुई है। दर्जा हरारत पहले 1 हफ्ते से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो उसको छू रहा था। अब जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अल सुबह से ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, जिससे गर्मी की जो शिद्दत है उसमें जो है वो कमी वाक़ई हो रही है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का भी ये कहना था कि आइंदा कुछ रोज़ तक जो गर्मी की शिद्दत है उसमें जो है वो कमी वाक़ई होगी। दर्जा हरारत जो है वो नीचे आएगा। कल जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। उससे अगले रोज जो है वो दर्जा हरारत में जो है वो बिरतरी जो है वो कमी वाक़ई होगी, जिससे गर्मी की जो शिद्दत है उसमें जो है वो नुमाया तौर पर जो है वो कमी वाक़ई होगी। और उनका ये भी कहना था कि शाम के औकात में जो है वो हवाएं भी ठंडी हवाएं भी चलेंगी, जिससे जो गर्मी की शिद्दत है उसमें जो है वो नुमाया तौर पर जो है वो कमी वाक़ई होगी। उनका मजीद ये भी कहना था कि बारिश ना होने के बावजूद भी जो है वो गर्मी जो है वो कम हो रही है। इसके साथ साथ जो तिबी माहिरीन है उन्होंने भी शहरियों को हिदायत जारी की है कि जैसे जैसे मौसम जो है वो गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी कम हो रहा है, शहरी अपनी जो है वो हिफाजत भी करें और गर्मी की शिद्दत में इजाफे होने के साथ साथ जो है वो घरों से बाहर भी ना निकले। ठंडे मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हीट स्ट्रोक जैसे वाकयात से बचा जा सके। माजिद क्लासरा आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमों में छुपी काली भेड़ों को कौन डालेगा लगाम? बहावलपुर में डायरेक्टर एंटी करप्शन की सीट 4 माह से खाली है। सालीन को परेशानी का सामना, दफ्तरी अमूर भी शदीद मुतासिर हो गए हैं। महकमे में छुपी काली भेड़ों को कौन डालेगा लगाम? बहावलपुर में डायरेक्टर एंटी करप्शन की सीट 4 माह से खाली है। सालीन की परेशानी का
सामना करना पड़ रहा है। दफ्तरी अमूर भी शदीद मुतासिर। महकमों में छुपी काली भेड़ों को कौन लगाम डालेगा? बहावलपुर में डायरेक्टर एंटी करप्शन की सीट 4 माह से खाली। मुल्तान में एंटी करप्शन की करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसील जारी कर दी गई। रवां साल में करप्शन की 4966 शिकायत मौसूल हुई हैं। 601 इंक्वायरीज मुकम्मल करके 224 मुकदमात का इंदराज किया गया। 520 मुलजमान से 3,50,90,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर। जी, एंटी करप्शन हुकाम ने रवां साल के दौरान करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। एंटी करप्शन की जानिब से जारी करदा इस रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के खिलाफ 4966 शिकायत रवां साल के दौरान मौसूल हुई हैं, जिन पर 601 शिकायत पर इंक्वायरी मुकम्मल की गई और मजमूई तौर पर 206 जो चालान है वो अदालतों में जमा करवाए गए हैं, जबकि इन शिकायत के खिलाफ 224 मुकदमात भी थाना एंटी करप्शन में दर्ज किए गए हैं। एंटी करप्शन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 520 मुलजमान को गिरफ्तार करके 3,50,00,000 और 90,000 से जायद की जो रकम है जो करप्शन में खुर्द-बुर्द की गई थी वो बरामद की गई है, जबकि इन कार्रवाइयों के दौरान 7 अरब से जायद की ज़रई और कमर्शियल सरकारी अराजी भी मुख्तलिफ इलाकों में वागुजार कराई गई है। रवां साल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और 15 इश्तिहारी मुलजमान जो तवील अरसे से एंटी करप्शन को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे उनको गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ केसेस में 27 जो छापे हैं वो मारे गए हैं, जिनमें मुलजमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में करप्शन के खात्मे के लिए टीमें जो हैं वो सरगर्म है और ऐसे तमाम केसेस जिनकी क्वायरीज अभी चल रही हैं उनके जल्द तकमील करने के लिए भी अहकामात जारी किए गए हैं। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि करप्शन के खात्मे के लिए हर तरह से सरगर्म है और मुल्तान के तमाम सरकारी ये जो इदारे हैं उनसे करप्शन का खात्मा हरा। बेहतर यासिर मजीद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में गैर कानूनी असलहा रखने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक साल में गैर कानूनी असलहा रखने के 1200 मुकदमात का इंदराज किया गया। एक साल में गैर कानूनी असलहा रखने वाले 298 मुकदमात में मुलजमान को सजा सुनाई गई है। मजीद जान लेती है माहिर इमरान से। जी इमरान। बात करेंगे आज गैर कानूनी जो असलहा की एक तरीके से जो नुमाइश की जाती है और साथ ही जो जिन लोगों से गैर कानूनी असला बरामद होता है तो उसके खिलाफ जो अदालती कार्रवाइयाँ, अदालती डाटा की हम बात करें तो एक साल के दौरान 1200 से ज़्यादा जो मुकदमात में जो मुलजमान के चलान जमा हुए और मुलजमान को जो मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई गैर कानूनी असला बरामद होने। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट माहिर इकबाल सरगाना साहब मौजूद हैं, उनसे जानती हैं गैर कानूनी असला रखना जुर्म है, किस हद तक ये जुर्म है और क्या कहना चाहिए? गैर कानूनी असला रखना, नुमाइश करना, ये जो है आर्म ऑर्डिनेंस के तहत इसकी 1 से 14 साल तक सज़ा है और अदालत जो है जुर्माना भी आयद कर सकती है। तो इसलिए जो है गैर कानूनी जो असला रखना और नुमाइश करना ये आर्म ऑर्डिनेंस के जो जराइम है उनके जुमले में आता है। फर्स्ट टाइम जब ये पकड़े जाते हैं तो प्रोबेशन पर भी हम देख रहे हैं, ये प्रोबेशन की सजाएं क्या होती हैं और शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इंटेंसली तौर पे या अनइंटेंसली जो एक तस्वीर लगा रहे होते हैं? शहरियों को यही अर्ज करना चाहते हैं कि किसी तौर भी असला की नुमाइश और ये जो आजकल सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा देते हैं ये जुर्म है और ये जो है नई नस्ल को जो है गलत राह पे लगाने के मुतरादिफ है। गैर कानूनी असला रखना जुर्म है, उसकी नुमाइश करना भी जुर्म है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत किसी भी घर में जो सर्च वारंट और सर्च ऑपरेशन किए जा सकते हैं और जिससे गैर कानूनी असला बरामद हुआ तो उसके खिलाफ जो सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में। माहिर इमरान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हरुणाबाद में बकरा चोर गिरोह सरगर्म हो गया है। इलाका मकीनों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, खूब दुर्गत बनाकर हवाले पुलिस कर दिया। हरुणाबाद में बकरा चोर गिरोह सरगर्म हो गया। इलाका मकीनों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है, खूब दुर्गत बनाकर हवाले पुलिस कर दिया गया। इलाका मकीनों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। हरुणाबाद में बकरा चोर गिरोह सरगर्म है, खूब दुर्गत बनाकर इलाका मकीनों ने पुलिस को हवाले पुलिस कर दिया है इस बकरा चोर गिरोह के एक रुकन को। विहाड़ी में नौजवान इलाका मतरो में 62 मुलजमान की गुंडागर्दी, नौजवानों की अगवा करके गाड़ी समेत 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इलाका मकीनों के इंसाफ के लिए थाना मतरो के बाहर एहतजाज हो रहा है। मजीद जानते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। जी हाफिज साले, बताइए।
हम मौजूद हैं विहाड़ी का नवाही इलाका है तो मित्रों, जहां पे एक नौजवान इमरान को अगवा किया चंद मुलजमान ने और उसके बाद उसके पास मौजूद रकम 15 लाख रुपए और एक गाड़ी जो है वो उससे छीन ली और इसे अगवा करके जो है वो एक शोरूम के अंदर बंद कर दिया। इस वक्त मुगवी नौजवान जो है इसको पुलिस ने बरामद किया। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं, कौन लोग थे जिन्होंने आपको अगवा किया और मामला क्या था? असल में मामला ये था कि उन्होंने मुझे अगवा के, मैं हवाम पे था, कटिंग करवाने के लिए गया। इन्होंने मुझे मतलब असले के जोर पे अगवा किया और मुझे गाड़ी में मेरी छीन के ले गए और मुझे मारा भी। और उस मौके पर 15 कॉल की मेरे भाई ने और उधर से 15 ने पुलिस ने मुझे बरामद किया। उसके बाद 1 से 1:30 बजे रात को उसने गाड़ी भी बरामद की पुलिस ने, उसकी वीडियो भी मौजूद है। अच्छा ये बताएं, पुलिस की तरफ से अगवा का मुकदमा क्यों नहीं अभी तक दर्ज किया जा सका? ये तो पुलिस को मालूम होगा, लेकिन 2 सर्टिफिकेट का दे दिए, अगवा का नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मुखबी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो अगवा का मुकदमा जो है वो पुलिस की तरफ से दर्ज नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीन भी जो है वो तशवीश के अंदर मुबतला है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि ये मामला क्या था कि इसे क्यों अगवा किया गया नौजवान को? इसका मामला ये था कि पहले भाईवाल थे, ये काम करते थे इसके साथ, अलहदा हो गए, अलहदा होने की वजह तो इनू मशहूर कर लिया, उन्होंने अगवा कर लिया। अच्छा अभी पुलिस से क्या मुतालबा है आपका? पुलिस से मुतालबा है कि अगवा का पर्चा दें। इलाका मकीन भी इस वक्त जो है वो नौजवान इमरान के हक में जो है वो खड़े हैं और उनकी तरफ से डीपीओ विहाड़ी, आरपीओ मुल्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि जो इमरान को अगवा किया गया उसका अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाए। और मुकदमा दर्ज किया गया है। हाफिज साले मोहम्मद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में शहर औलिया में सफाई इंतजामात में शिकायत का मामला। सीओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फारूक डोगर इन एक्शन। डिप्टी मैनेजर से मैनेजर ऑपरेशंस की इजाफी जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। मैनेजर आईटी मोहम्मद इमरान को ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। मैनेजर आईटी चारों डिप्टी मैनेजर्स ऑपरेशन से सफाई बारे रिपोर्ट हासिल करेंगे। कंपनी के सीईओ मोहम्मद फारूक डोगर की हिदायत पर ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली का रेस्क्यू इंचार्ज अरशद भट्टी के हमरा सहराय चोलिस्तान में कायम पर रेस्क्यू कैंप का दौरा किया गया। रेस्क्यू ने चोलिस्तान में खुशहाली से मुतासर लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया। राव शराफत अली ने रेस्क्यू टीम के हमरा चोलिस्तान के बासियों में राशन और पानी तकसीम किया। रेस्क्यू टीम ने खुश्क टोबाजात को पानी फराहम किया ताकि जानवर भी पानी पी सकें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली का रेस्क्यू इंचार्ज अरशद भट्टी के हमरा सहराय चोलिस्तान में कैंप पर रेस्क्यू कैंप का दौरा किया है। चोलिस्तान में खुशहाली से मुतासर लोगों को पीने के साफ पानी फराहम किया जाएगा। नौजवान हुनरमंद पाकिस्तान टीटीसी कॉलेज सरगोदा में कुकिंग क्लासेस तलबा और तालिबात को ट्रेनिंग देने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। जी शेख उस्मान, बताइएगा। नौजवान हुनरमंद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम टीटीसी कॉलेज के अंदर जो है इस वक्त प्रोग्राम जो जारी है, जहां पर बच्चे और बच्चियों दोनों को जो है कुकिंग का जो वो सिखाया जा रहा है और यहां पर बच्चे जो है वो कुकिंग सीख कर जो है वो फील्ड में जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीचर मौजूद है, इनसे हम मजीद जानते हैं। मैडम ये बताइएगा कि ये कुकिंग के कितने बच्चे अभी तक आपसे जो है वो सीख कर गए हैं और इस कोर्स के मतलब मजीद बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा बैच है और हमारे पास तकरीबन 85 स्टूडेंट सीख के जा चुके हैं और वो सिर्फ सीख के ही नहीं गए, वो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। हमारे सरगोदा में आप चेक कीजिए, मिस्टर विंग्स पर हैं, इस्लामाबाद हवेलिया में है, फ्राई चिक्स पे हैं, जमजम पर है, मतलब हर होटल में आपको हमारे स्टूडेंट मिलेंगे। और इसके अलावा हमारा जो एक मेन मकसद हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए वो ये था कि कम पढ़े लिखे जो बच्चे थे उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये था कि वो कुछ ऐसा हुनर सीखें जिसको सीखने के बाद वो एक माशरे में बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकें। रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं इसमें। और ये कुकिंग, हम इसे सिर्फ कुकिंग नहीं कहते, ये प्रोफेशनल कुकिंग है। वो कुकिंग जो आप लोग एक तो घर में आम कुकिंग कर रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, मगर प्रोफेशनल कुकिंग इसमें हम आपको फ्रोज़न भी सिखा रहे हैं, इसमें हम आपको बेकरी के आइटम्स भी सिखा रहे हैं और बेतहाशा। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रिसाइकल कैसे किया जाता है फूड को। अगर आपका खाना बच गया है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्दी वे में जाकर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, और ख़ास तौर पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रियाज साहब का, हमारे डीएम हैं मोहम्मद यार साहब, बहुत ज़्यादा उनकी मैं थैंकफुल हूँ। उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन बच्चों के लिए कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें।
बहुत शुक्रिया आप सबका। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि कम पढ़े लिखे नौजवान जो है, उन बच्चे और बच्चियाँ, उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो यहाँ से काम सीख कर मुख्तलिफ जो मकामात पे होटलों में जाकर जो है। उस्मान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में कमिश्नर जहांगीर अनवर ने दफ्तरी अमूर संभाल लिए। कमिश्नर ऑफिस में अफसरान के साथ मुलाकात, दफ्तरी अमूर निपटाने वाले दीगर अफसरान से भी मुलाकात की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर फैसल अता, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान भी शामिल हैं। रहीम खान में कपास की काश्त का सीजन, जिले में 4,70,000 पर कपास की बिजाई हो गई। माहिरीन का काश्तकारों को बिजाई के 25 दिन बाद छदराई का मरहला शुरू करने की हिदायत की गई है। आमिर भट्टी से जानते हैं। जी आमिर। बिल्कुल, हमारा मुल्क ज़री वतन है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कपास की काश्त की जाती है। कपास की बिजाई का मरहला इस वक्त जारी है। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली हमारे मौजूद, उनसे जानते हैं। सर बताएगा कि बिजाई जो है कितनी फीसद मुकम्मल हो चुकी है, अगला कौन सा मरहला है और रवां साल जो है कौन कौन सी बीमारियाँ आप देख रहे हैं जो कपास में मुतवक्के हैं या फिर हो रही हैं, कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीम खां की बड़ी अहम फसल है और इस साल जो इसका टारगेट जो है वो तकरीबन 5,63,000 एकड़ है। तो अभी तक जो है तकरीबन 4,80,000 एकड़ के ऊपर जो है वो काश्त इसकी मुकम्मल हो चुकी है। 80% जो है वो काश्त मुकम्मल हो गई है। इस साल जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गंदम जो है वो 10-15 दिन अर्ली जो है ज़िम्मेदारों ने उठा ली थी, इसलिए मार्च के एंड से ही ज़िम्मेदारों ने कपास काश्त करनी शुरू कर दी थी और अभी तक जो है वो काश्त का अमल जो है वो जारी है। तो अभी बहुत जो ज़्यादा जो है ना एकड़ेज है वहाँ के ऊपर, वहाँ पे तकरीबन छदराई का मरला जो है वो आ गया है और ज़िम्मेदार हजरात जो हैं इस साल जो है खुसूसी सफ़ेद मक्खी के पॉइंट ऑफ व्यू से छदराई करें, पौधे से पौधे का फासला थोड़ा ज़्यादा रखें। इससे ये होगा कि हवा का गुजर बेहतर होगा और पौधे के नीचे जो है सफ़ेद मक्खी अपनी कॉलोनियाँ नहीं बना सकेगी। इसके साथ और ये ख्याल रखें कि अगर फसल के इर्द गिर्द सब्जियाँ काश्त हैं, खासकर भिंडी है या बैंगन काश्त है, उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला होता है तो उसको वहीं पे कंट्रोल किया जाए ताकि वो हमारी जो है फसल कपास के ऊपर जो है वो मुंतकिल ना हो सके। इसके साथ जो है मार्च एंडिंग में या अप्रैल के शुरू में जो फसल काश्त है उसने फूल उठाना शुरू कर दिए हैं, तो उसके ऊपर जो है मुतवक्के है कि गुलाबी सुंडी का भी हमला हो। तो ज़िम्मेदार हजरात जो है गुलाबी सुंडी के लिए कोई केमिकल का स्प्रे ना करें बल्कि उसके फूलों की तोड़ाई करें और उनको ज़ाया करें ताकि उसकी नस्ल आगे ना बढ़ सके। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि कपास जो है कौन से मरले में, अगला कौन सा मरला है, कौन सी बीमारी मुतवक्के है। आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।